आइडेंटिफाई करना कुछ ऐसे लोगों को जो आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, जो आपसे जेलस होते हैं, काफी मुश्किल हो सकता है। बट अगर हम कुछ चीजों को माइंड में रखें तो हम काफी इजीली पता लगा सकते हैं कि ये लोग हमारी लाइफ में कौन है और हमारी लाइफ में बुरा इम्पैक्ट कैसे डाल सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मुस्कान एंड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये टॉपिक कि हम हमारे आसपास जेलस इंडिविजुअल्स को कैसे फाइंड आउट करें। क्योंकि एक जेलस इंडिविजुअल हमारी लाइफ में सिर्फ हमारे आसपास जेलसी नहीं फैलाता। हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ भी कहता है मेरे बारे में, आई डोंट केयर, मैं अपना अच्छे से उसके साथ रहूंगा, वो रहे, बाकी वो कुछ भी करे, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स ओपिनियन। दैट इज फाइन टू सम एक्सटेंट, बट व्हाट इफ आई से दैट they are stopping you from growing spiritually, they are making your energies negative and are affecting you indirectly in the ways which you don't understand. What if एक दिन तुम उठो और तुम्हारी हेल्थ ज्यादा ही खराब हो जाए? क्या ये किसी जेलस इंडिविजुअल की वजह से है? हाँ है। सो ऐसे चीजों को इग्नोर ना करते हुए लेट्स जस्ट गो इनटू द वीडियो एंड लेट्स फिगर आउट कि हम कैसे ऐसे लोगों से बच सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं एंड क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पूरी वीडियो में मैं अपना पर्सनल एग्जांपल ही लूंगी, कुछ एग्जांपल्स मैं बाहर से भी लूंगी, बट मैं कंसीडर खुद को ही करते हुए बताऊंगी। हम इस वीडियो में कंसीडर करेंगे एक फीमेल पर्सन जो कि एक बहुत क्लोज फ्रेंड है और हाउ शी इम्पैक्ट्स अदर पर्सन की लाइफ, किस वे में, क्या साइंस शो करके, ये आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो. So the first thing is that, for example, if you are a very good dancer, maybe you have some interest in dance, not a very good dancer, whatever. If you dance, for example, ठीक है, maybe there is you study in a university and there is a event coming and you have taken part in that. It's just an example to explain the situation about achievements, and you performed very nicely in that particular place. Or maybe while you were practicing, the teacher who was your dance teacher said that you are dancing really nice, I think you should come in the front or whatever, if such situation exists, and that particular close friend of yours comes to know about this. Now when you are sharing this achievement with that particular person, that this happened, ठीक है, maybe see, sometimes we all share something with our close friends, whether it's negative things or positive things. Okay, so while you're sharing this with a particular whom you think is a close friend and you're telling that this happened, and they tend to ignore that thing. You came and you just said that मेरे साथ आज ये हुआ and I was put in the front because मैं अच्छे से डांस कर रही थी, and then they change the topic and they're like, अबे ये वॉच कितनी अच्छी लग रही है ना, and all. So they tend to ignore things. So the people who tend to ignore things are most probably jealous of you, because I have had this person in my life and I have had the same situation in my life. Another point could be that when you have achieved something and you are telling them about your achievement, that yeah, this has happened, so I guess ये अच्छा ही चला गया, and maybe I have purchased an iPhone 15 Pro. Okay, so now they are ignoring it, and then they start talking about themselves. I could have bought iPhone 15 Pro, but you know, I used this money in this way and I didn't waste my parents' money, because maybe you may have purchased it through your parents' money. And if you are, for example, just telling that I donated this much food to my dog, तो वो dog को रोज मेरे घर आने की आदत लग गई, अब वो रोज आता है, मैं रोज उसको खाने देती हूँ, I feel good. So that person starts talking about मेरे घर भी रोज एक बिल्ली आती है, मैं भी उसको दूध पिलाती हूँ. अबे तो मैं क्या करूँ भाई, ऐसे इंसानों को रखने से अपनी लाइफ में है कि तुम अकेले रह जाओ. छी यार, सीरियसली. ठीक है, सो अब ये अगर इंडिविजुअल्स आपकी लाइफ में रहते हैं, आपने कुछ टाइम के लिए इनको क्लोजनेस से हटा के एक नॉर्मल फ्रेंड भी रख लिया, बट स्टिल आप उनकी कम्युनिकेशन में रोज हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सेम क्लास और सेम सेक्शन में हैं और वो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है या व्हाटएवर. सो अगर आप उनके आसपास रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जिस तरह से आपको अचीव करते हुए चीजें देखेंगे, करियर में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप्स में, व्हाटएवर, जहां भी है, कहीं पे भी आपको अचीव करते हुए देखेंगे, वो आपको एक ईवल आई पास करेंगे. क्योंकि अंदर से अगर जेलसी अंदर से आती है, जेलसी बाहर से फेक नहीं की जाती, ऑब्वियसली. सी, लव इज समथिंग विच कुड बी फेक, बट हेट इज समथिंग जो फेक नहीं की जा सकती. हेट इंसान के दिल से आती है, ठीक है. सेम गोज फॉर जेलसी. तो अगर एक इंसान जेलस होता है ना, तो अंदर से आता है, बाहर से फेक नहीं किया जाता, और जो चीज अंदर से वो इंसान दिखा रहा है ना, वो इम्पैक्ट करती है कहीं ना कहीं. आप अब ये बात भी डिफरेंट है कि आपके ऑरा वगैरह पे डिपेंड करता है, बट स्टिल जो भी है, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा आपके आसपास में
कैसे होगा? अगर कोई आप अचीव करते हुए देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हैं, आपने असाइनमेंट बहुत अच्छा कर दिया, आपकी टीचर ने आपको स्कूल में अप्रिसिएशन दे दिया कि पूरी क्लास के सामने दैट यू हैव डन रियली दिस, एंड देन दे विल पास अ लिटिल स्माइल, दे विल बी फील लाइक, दे मे फील लाइक इफ दे हैव सीन योर असाइनमेंट, दे मे फील लाइक कि भाई मैंने इससे बेटर किया था, बट इसको अप्रिसिएशन इस चीज के लिए क्यों मिल रहा है? तो बहुत सिंपल था, दे विल पास जेलसी। एंड अगर उनको इसी पॉइंट से हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे गॉसिप के, दे में गॉसिप एंड देन मोर दे विल ट्रांसफर सम बैड एनर्जीज, सो इट विल क्रिएट अ बैड एनर्जीज अराउंड यू विच कैन इम्पैक्ट इन योर स्कोर फर्दर। आई टॉक अबाउट दैट ऑल्सो आगे वीडियो में। सो इन दी एंड दिस इज द थिंग कि दे विल क्रिएट अ टॉक्सिक एनवायरमेंट, जिसमें आप अगर ओवर अचीव कर रहे थे, आप टाइम के साथ कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फिर कॉन्स्टेंटली कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से वो चीज आपको अफेक्ट करेगी। अगर आपके आसपास टॉक्सिक एनवायरमेंट है ना, अगर आप थोड़ा सा भी उस चीज को अगर आपकी बॉडी एनर्जीज वगैरह उसको कैप्चर कर लेंगी ना, तो इट्स गोना स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग स्पिरिचुअली, ठीक है? बिकॉज आपके अराउंड पॉजिटिव चीजें नहीं रहेंगी, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सैड जाओगे, किसी भी चीज को आपको कई बार पता भी नहीं चलेगा, आपका माइंड उस तरह नहीं चल पाएगा क्रिएटिवली। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में है, कोई अगर आप असाइनमेंट कर रहे हैं क्रिएटिव और उसमें आपको नहीं हुआ, तो आपके पास आइडियाज नहीं आएंगे, जबकि एक क्रिएटिव फील्ड में होने के लिए आइडियाज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वो कॉन्स्टेंटली आने चाहिए ताकि हम उनकी तरफ वर्क कर पाए। और एक आइडिया नहीं, बहुत सारे आइडियाज आने चाहिए। सो जब ऐसे इंसान आपके आसपास की एनर्जी को खराब करेगा, आपके ब्लॉकेजेस जाएंगे, ठीक है? सो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव सच पीपल इन योर लाइफ। अगर आप बाहर से बोलो कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल दे कैन इम्पैक्ट यू इन अ वेरी नेगेटिव वे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच आई टॉक्ड अबाउट वाज द गॉसिप थिंग। इफ देयर आर 3 पर्सन्स, एक आप हो, एक आपकी क्लोज फ्रेंड जिसको हम लेके चल रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल उस क्लोज फ्रेंड की एक रूममेट है, एग्जाम्पल लेकर ही चलते हैं, ठीक है? आपने क्लास में वही वाला एग्जाम्पल लेंगे, अचीव किया, आपको पूरी क्लास सामने अप्रिसिएशन मिल गया, डांस में अगर आपको आगे खड़ा कर दिया, या फिर एक असाइनमेंट जो आपने कर रखा था उस वजह से आपको अप्रिसिएशन मिल गया, तो अब उसके पास कोई पर्सन है नहीं ना जाके बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अपनी रूममेट से उसकी अच्छी बनती है, जाके कोई आपके टॉपिक निकला तो किसी न किसी बात से वो स्मार्टली अपनी रूममेट को कम्युनिकेट कर रही है पहले तो, अगर वो एक बहुत स्मार्ट इंसान है कि क्या थॉट्स हैं इंसान के बारे में, तुमसे बात निकलवाएगी, ठीक है? एंड देन वो बंदी कुछ बोलेगी तो उसके बाद वो बताएगी कि भाई उसने ऐसा बनाया था, मैंने इतने 24 घंटे दिए इसमें और इतनी अच्छी चीज को मैम ने मेरे को कम मार्क्स मिले, उसको मिल गए। यू नो दैट थिंग विल कम बिटवीन दोज पीपल एंड they'll do this. So gossip is something फिर वो बढ़ती है, and then for example that particular person comes to you tomorrow and say कि पता है यार ये पर्टिकुलर बंदी जो मेरी रूममेट है ना, ये तुम्हारे बारे में मेरे से 10 बात बुरी बोली, उसने ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला। ओके, अगर उसने मेरे बारे में 4 बातें गलत बोली तो तुम चुपचाप सुनती नहीं, तुमने कुछ भी नहीं बोला होगा। हाँ, दिस कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी, राइट? सो गॉसिप कुड बी अनदर थिंग। अब अनदर मेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि सबसे इजी वे मैनिपुलेशन का है। सी, आपके साथ अगर लाइफ में बहुत बुरा कुछ चल रहा है, अच्छा कुछ चल रहा है, हम दोनों चीजें लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बुरा का बात करेंगे क्योंकि इजीली, बहुत इजी, मोस्टली यही चीज होती है। कुछ बुरा चल रहा है और आप उस पर्टिकुलर पर्सन से शेयर करते हैं, तो आपको ऑब्वियस बात है, आप एक्सपेक्ट करते हो कहीं ना कहीं की एडवाइस दो। यही सबसे इजी वे होता है मैनिपुलेट करने का, एडवाइस, एक्सेसिव एडवाइस। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लेकर चले, अब इन 2 लोगों के बीच में एक और कोई इंडिविजुअल आ गया, आप फॉर एग्जाम्पल आपका कोई और क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, एंड उसके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, उसने कोई एक मिस्टेक कर दी या फिर एक कुछ बात ऐसी बोल दी जो आपको लग गई यहाँ पर, बट वो एक अच्छा इंडिविजुअल है, अनइंटेंशनली जैसे भी करके उसने कुछ बात बोल दी, एंड आप अपने क्लोज फ्रेंड से तो सब कुछ शेयर करते हो। यू केम एंड यू टेल हर कि यार ऐसा ऐसा आज हुआ था, बट ना उसने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, आई डोंट नो लाइक ये उसने क्या इंटेंशन से किया था, मुझे इसके बारे में थॉट देना चाहिए या नहीं, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली ओवर हियर। आप एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो, ये तीसरे इंडिविजुअल को दिख रहा है, एंड अगर वो आपसे जेलस है, वो ऐसा थोड़ा सा इंसान है जो नहीं देख पाता है खुश, ऑब्वियस बात है वो आपको बिना बताए जेलस हो रहा है कि ये दोनों इतने खुश क्यों, वो बंदा इसके लिए इतना क्यों कर रहा है, ये उसके लिए इतना क्यों कर रही है, ये दोनों इतना बॉन्ड अच्छा डीप शेयर क्यों करते हैं। और एज अ क्लोज फ्रेंड कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गलती, मिस्टेक, हर एक रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप, कोई सा भी रिलेशन में फाइट्स होती हैं, कोई भी एक पॉइंट निकाल के अगर उस बंदी तक पहुंच गया तो वो पर्टिकुलर पर्सन वो चीज देकर बोलने लगेगी क्योंकि उसने आपको ऐसे किया, पर वो ऐसे भी तो कर सकता था, वो 10 गलतियां और निकालेगी जिस वजह से आप उस पर्टिकुलर पर्सन से, अगर आप इजिली मैनिपुलेट हो जाते हो और अगर आप उस पर्टिकुलर क्लोज फ्रेंड पे ज्यादा ट्रस्ट करते भी हो, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वाली चीज आएगी कि सही बात है, उसने इस तरह ट्रीट किया मुझे, वो इस तरह भी तो कर सकता था। वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें भी लेकर आएंगे। आई हैव सीन वन केस, इट्स नॉट माइन, बट आई हैव सीन दिस केस वेयर 2 people वर वेरी
close to each other in some way, and then there was their close friend, and you know that person used to go and share everything to that third person. ठीक है, now their relationship was very going nice, but एक आध चीज थोड़ी बुरी लग जाती है, तो इधर आके ये they were telling. So that particular person was like कि उसने ये भी तो नहीं करा, ये भी तो कर सकता था, वो तो कभी तुम्हारे लिए ऐसे करता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, 10 चीजें बुरी डालेंगे और फाइट्स होंगी, मैनिपुलेट इजिली कर सकते हैं. एक अनदर साइन जो मैंने उनके पार्ट में देखा ये करते हुए कि देयर वाज एन इवेंट इन माय कॉलेज फॉर एग्जांपल, या देयर वाज अ इवेंट एंड नाउ व्हाट वाज हैपनिंग कि दैट पर्टिकुलर पर्सन का जो क्लोज फ्रेंड है वो कॉलेज में नहीं है, एंड दीज टू पीपल आर इन कॉलेज शेयरिंग अ नाइस बॉन्ड. ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन मिसेज उसका वाला इंडिविजुअल पार्टनर. ठीक है, पार्टनर लेंगे हम, वो अपने पार्टनर को मिस करती है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, बट ये दोनों तो यहाँ पे बहुत हैप्पी हैप्पी दिख रहे हैं ना. इफ समथिंग इज गोइंग ऑन दे बोथ आर एंजॉयिंग ना, शी लुक्स एट लाइक देम एंड शी suddenly misses her partner कि यार they are looking so cute together and they are enjoying it, but where is my partner? And what happened in front of my eyes only, they both were enjoying, and जैसे उसने यूं देखा and she felt what is this going on, she took out her phone and started texting her partner. Like seriously you would do this? And पूरे चेहरे की वो हंसी, यू निकल जाना, and you know it's very easily identifiable कि जब एक पर्टिकुलर पर्सन रियल स्माइल दे रहा है और थोड़ी फेक दे रहा है, वो पूरा उसका मुंह उतर जाना, it is easily visible, okay? And then you just take out your phone and you're texting your partner saying all that, and then पूरे टाइम नेक्स्ट टाइम तुम ढंग से बात नहीं कर रहे हो, पूरे इवेंट में ऐसी तैसी कराओ, ठीक है, और मुंह फुला के बैठे हो. So this is the way people can, pass evil eye on anything you do. If you are two are having a great bond, people can destroy that through evil eye, and then that person is gonna come and give you excessive advice on something कि okay, उसने ऐसे किया पर वो ऐसे नहीं कर रहा था, उसने तुमको ऐसे करा, all that. Okay, you need to be beware of such type of people. They are literally gonna impact you in a very very bad way. Let's talk about this more, how this can impact in a more very very bad way. ठीक है, ये सब तो हो गया अच्छी चीजों में भी फॉल्ट फाइंड करना. अगर वो पर्टिकुलर पर्सन यहाँ घुमाने लेके गया तुमको, पर उसने उधर पे तुम्हारे लिए इस चीज का पे नहीं करा, ठीक है, उसने तुम्हारे लिए ये नहीं करा, वो गया तुम्हारे साथ, बट क्या वो तुम्हारे हाथ पकड़ के चल रहा था? Anything could be anything. That person, if has manipulative powers, they can destroy very good things in life. Okay, complimenting with an insult is another very nice point. Let's proceed with an example. For example, you both are discussing about something, and then they know your nature, you know your nature. Okay, now you're telling कि यार मैं हर सिचुएशन में हमेशा ऐसे बिहेव करती हूँ, कहीं ना कहीं ऐसे रहती हूँ, बट रिसेंटली ऐसा हो गया कि भाई ये वाली सिचुएशन हो गई मेरे साथ, ये हो गई, बट स्टिल आई वाज काम एंड वेरी नाइस एंड ऑल. सो वो पर्टिकुलर पर्सन अब कॉम्प्लीमेंट विद अ फॉल्ट में क्या करेगा कि आपने ऐसे बोला कि इस बार बहुत अच्छे से कामली में कहीं ना कहीं ये चल रहा है, बहुत अच्छे से निकल गई चीजें, फालतू अननेसेसरी चीजों में मुझको नहीं पढ़ना तो मैंने ये कर दिया. हाँ, तो उस बंदे का आंसर, हाँ तुम हमेशा तो वैसे, हाँ वही मैं सोच रही थी कि आज तुमने बहुत अच्छे से डील कर ली, वरना कई बार तुम फेक हो जाती हो. कॉम्प्लीमेंट with an insult. When you know on a personal level that you are improving on something, तुम्हारी किससे लड़ाई होती थी तुम जाके लड़ लेते थे, पर आजकल तुम एक स्मार्ट वर्क कर रहे हो और तुम उन लोग को बोलने देते हो क्योंकि तुम उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता और अपने तक ही बातें रखते हो, ठीक है, और बहुत इजीली उनसे जाने दो करके डील कर लेते हो. और अगर तुम अपने क्लोज फ्रेंड को आके बात बता रहे हो तो वो चीज में तुमको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहा है कि हाँ वही मैं देख रही हूँ तुमने कर दिया, वरना तुम कई बार फेक हो जाती थी. Who the hell are you to say this? Indicating signs of jealousy. A very good sign that someone is jealous of you is that they'll copy you. ठीक है, थोड़ा सा रेजोनेट करेगा ये वाला पुराना एग्जाम्पल, बट पूरी तरह नहीं. I'll give another example also. जैसे कि अगर ये दोनों पर्टिकुलर पर्सन किसी इवेंट में एंजॉय कर रहे हैं, जो दो पार्टनर्स हैं और इसका पार्टनर है नहीं, तो ये जाके टेक्स्ट कर रही है अपने वाले को, कॉल कर रही है कि भाई ऐसा लग रहा है वटेवर, और मुंह तर गया उसका. कॉपीइंग क्यों? कॉपीइंग इसलिए यहाँ पे कि भाई ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं, वो कहाँ है, तो कॉपी कर रही है कि कहीं ना कहीं से उसको वाली अटेंशन मिल जाए जिस चीज को वो क्रेव कर रही है. कॉपीइंग कुड भी कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप की पर्सन हो जो अपने असाइनमेंट्स में एक पर्टिकुलर थीम लेके चलते हो किसी भी चीज की, और आप उस चीज पे असाइनमेंट बनाते हो, या फिर आपने कन्वे करी कि यार आई एम थिंकिंग कि मैं अपना असाइनमेंट इस तरह से करूँ, एंड नेक्स्ट डे आप देख रहे हो कि उसका असाइनमेंट जब क्लास में आ रहा है वो आपकी थीम से रेजोनेट कर रहा है. कॉपी अगेन, कॉपिंग एनीथिंग, द फूड यू ईट दे में कॉपी इवन दैट शिट ऑल्सो. ओके, कॉपिंग इज समथिंग जो बहुत ज्यादा जेलसी का साइन होता है, स्पेशली क्लोथिंग में कोई कॉपी करने लग जाए, आपको कलर्स में कॉपी करने लग जाए, यू कैन इग्नोर दिस साइंस की बच्चों जैसी बातें, ये पर्टिकुलर कॉपी कर रहा है तो जाने दो, बट
स्मॉल स्मॉल थिंग्स अगर तुम इग्नोर करोगे तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, तुम्हारी एनर्जी खराब करेगा। ये आसपास पर्टिकुलर पर्सन अगर बार बार रहेगा तो डिस्ट्रॉय कर देगा तुमको। कैसे नहीं करेगा, मैं आगे बताती हूँ। वंस आई वेंट टू अ टैरो रीडर, मैं तो रहती हूँ इन चीजों में, सो आई हैड दिस थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर गर्ल एंड कि भाई ये बंदी कर रही है ये वाला पास, ठीक है। और मेरे को मिल गई एक टैरो रीडर में, कहीं घूमने गई थी तो मैंने जाके पूछा कि आई थिंक दैट आई एम सराउंडेड विद नेगेटिव पीपल अराउंड मी, am I sure about that particular person, that particular person is negative? And then she confirmed me ki are you moving in a place with her? She knew that I was gonna do that. She asked me, I was like yes. She was like, you can't do that, it's gonna destroy you. And when she said that, I was like, she is right to some extent, because when I came home I gave it a thought. Wait, now I'll give my personal example. So sem 1 निकला, sem 2 निकला। sem 1 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ठीक है, असाइनमेंट सबमिशन तक। जूरी में आई मेड अ फ्रेंड, शी वॉज माई क्लासमेट एंड आई यूज टू सिट विद हर एंड मेक माई ऑल माई असाइनमेंट्स विद हर। सो कहीं ना कहीं कमियां निकाल रहे होते थे चीजों में। अगर कुछ अच्छा कर रही होती थी तो अप्रिशिएशन नहीं कर रहे होते थे, बल्कि ऑन दी अदर लेवल इफ दे वर डूइंग समथिंग ग्रेट आई वाज लाइक डैम इट्स सो गुड। सो अगर अच्छा कर रहे हो तो कुछ नहीं बोलेंगे, बुरा कर रहे हो तो 10 बातें निकालेंगे उसमें। पर्टिकुलर चीज मुझे नहीं पता था कि ये पर्टिकुलर पर्सन इतनी ईवल आई पास कर सकता है। वहां बैठी हूँ, असाइनमेंट सारे जूरी के उसमें करे, मेरी हर एक जूरी खराब गई है सेम 1 में, बट स्टिल कहीं ना कहीं से पुराने असाइनमेंट्स वगैरह के उसमें सीजीपीए मेरा 8 के ऊपर पहुंचा, कहीं ना कहीं इट वाज वेरी नाइस। बट सेम 2 में जब मैं आइडेंटिफाई करने लगी सेम 2 के एंड तक पैटर्न्स इनके कि क्या चल रहा है, मैं बहुत लेट आइडेंटिफाई करी कि पर्सन जेलस है मेरे से, ठीक है, और बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब एंड तक में आई तो जब मेरी जूरी स्टार्ट होने वाली थी उसके एक दिन पहले ही एक इंसिडेंट हुआ जिस वजह से हम लोग की बात बंद हो गई, ठीक है। सो मेरी एंड आई नेवर शेयर्ड कोई आइडियाज विद हर एंड आई कैन से दैट माई जूरीज वर सो गुड। एक्चुअली जूरी मेंबर्स जो रहते थे वो सेम 1 में मुंह पे बेइज्जती करते थे। एटलीस्ट मेरी जितनी जूरी है सब अच्छी गई, एंड वाली थोड़ी सी गई, बट उसमें मेरा ही फॉल्ट है। आई एम नॉट ब्लेमिंग हर फॉर एवरीथिंग, बट यू नो जब आप उस पर्सन से बेटर भी करो और आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो कितनी गंदी तरीके से मेरी एनर्जीज को अफेक्ट कर रही थी वो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि जो मेरी एंड में जूरी थी वो कई हद तक अच्छी नहीं, जितना मैंने किया था मुझे उतना मिला, बट सबसे लास्ट वाली जूरी खराब हुई क्योंकि मेरा भी इतना अच्छा उसमें वो नहीं था। उसमें मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगी, बट जहां पे आप अच्छा भी कर रहे हो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो ना कहीं से कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो एक जेलस पर्सन हो सकता है। व्हाट हैपेंड, अब यहाँ पे जेलसी वापस आने वाला सीन था। मेरे को इन दी एंड उसे लेट गो इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा पानी सर के ऊपर चला गया था। कैसे हुआ था, वी वर सपोज टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर एंड आइडिया अप्रूव कराना था। अब उसको उसके आइडियाज अच्छे लग रहे थे, मेरे को मेरे अच्छे लग रहे थे। हमारी टीचर अप्रूव नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था आइडिया अप्रूव कराने में। सो आई वाज सिटिंग इन अ ग्रुप ऑफ 5-6 पीपल हु वर माई ग्रुप मेंबर्स फॉर अनदर प्रोजेक्ट। सो आई वाज लाइक इन लोगों से पूछ लेते हैं एक एक से कि कौन सा इसमें से आइडिया अच्छा लग रहा है, जो ये बोलेंगे वो हम कर लेंगे क्योंकि दे विल बी फेयर, और हम दोनों तो चूज नहीं कर पाएंगे ना क्या आइडिया बनाना है, क्योंकि उसको उसका अच्छा आइडिया लगेगा, मुझे मेरा लगेगा। आज वहां पे 4-5 जितने लोग थे उन सबसे बैठ के पूछा एंड व्हेन ईच वन ऑफ देम अग्रीड फॉर माई आइडिया, उसका चेहरा उतर गया। I couldn't, if I could record that scene, if I just hope that वो चीज मैं रिकॉर्ड कर पाती कि how fast those facial expression changed, because you know आप एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कुछ महीने रहते हो तो आपको भी दिख जाता है कि कब वो फेक स्माइल कर रहा है, आप आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो एक इंसान को। So you know when her face changed from this to the fake smile, it was very easily identify करने वाला। अब now she started taking out faults in the idea which got approved by my other group members and in the end हमने उस पर वर्क करना भी चालू करा। जूरी में बचे हुए थे 1.5 दिन बचे हुए थे। सुबह से लेके शाम तक हमने हमारे उस आइडिया पे वर्क करा और सुबह से लेके शाम तक शी स्टार्टेड टेकिंग आउट फॉल्ट्स। जितनी बार मैं उससे मिली कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, आई वाज गेटिंग इरिटेटेड, बट आई वाज डीलिंग विद द सिचुएशन इन अ वेरी काम वे कि मुझे लड़ना नहीं है। बट देन व्हाट हैपेंड, फाइनली रात में वो मेरे रूम में आके मेरे को बोलती है कि यू नो हम आइडिया चेंज करना पड़ेगा। Still, instead of fighting, I said, क्या करना है बताओ। I agreed to her change the idea, but you know, I controlled myself. Now, जूरी के 4 घंटे पहले जब रात में 2 बजे मैं अपना दूसरा असाइनमेंट कर रही थी, जो मेरी सेकंड जूरी उसी दिन थी साथ में इंडिविजुअल वाली, she came and then she says कि ये वाला काम भी मैं नहीं कर रही, तुमने ढंग से नहीं करा है, मैं दूसरा कर लेती हूँ, तुम ये फिर से बना लो और तुम तीसरा वाला काम भी खुद से कर लेना। So I was like, उस वक्त आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई सेड ये भी मैंने करा है, ये तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, ये भी मैं करूं और सब मैं करूं। सो दैट्स हाउ थिंग्स एंडेड विच वर फॉर द गुड, बिकॉज सच जेलस पीपल डू नॉट डिजर्व टू बी इन माई लाइफ बिकॉज दे इम्पैक्ट माई एनर्जी इन अ वेरी रॉन्ग वे।
सी सच थिंग्स कैन हैपन विथ यू ऑल्सो, यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. समटाइम्स ना कुछ चीजों को इग्नोर नहीं करना होता है, ठीक है, उन चीजों को बैठ के सॉल्व करके निकालना भी जरूरी होता है. बिकॉज तुम ये छोटी छोटी बातें करके अगर तुम इग्नोर करते जाओगे ना तो एक दिन ये बड़ी बात बन के तुम्हारे सर पे नाचेंगी, जो कि मैंने पूरे सेम इग्नोर करी. और इन दी एंड जब मेरे सर पे लिटरली नाच गई कि जूरी के 24 घंटे पहले हमने आइडिया चेंज करना पड़ गया किसी चीज का. तो इतना कोई गिर सकता है, इतना ईगो इंसान में आ सकता है कि वो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है. तो सही टाइम पे चीजों को सुधारना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. बिकॉज तुम नहीं सुधारोगे तो इंसान बेमतलब में सर पे चढ़ के तुम्हें गधा समझ के तुम्हारे सर पे नाचेगा. तो कहीं कहीं बोलना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बोलना होगा. आई डोंट थिंक मेरी हर वीडियो 5 मिनट की जाती है, बट आई डोंट नो ये वाली ज्यादा बड़ी जाएगी क्योंकि मैं पर्सनल एग्जाम्पल्स इतने सारे दिन का लेकर एक इंडिविजुअल पे लेकर जो बना रही हूँ, तो हो सकता है बड़ी जाए. ठीक है, दिल सेलिब्रेट योर फेलियर्स. माई पर्सनल एग्जाम्पल लास्ट वन, ठीक है, इसके बाद आई गेस ये वीडियो खत्म हो जाएगी, विच इज एन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. आई एक्चुअली लाइक शेयरिंग दिस वन. व्हाट हैपेंड कि हम दोनों गए घूमने कहीं पे, ठीक है, हम दोनों वहां पे घूमने गए, रोड पे चलते हुए जा रहे हैं, सामने से एक आंटी आ रही है, अच्छी सी फैट लेडी, ठीक है, आ रही है. एंड देन शी कम्स टू मी एंड आस्क्स मी कि व्हाट्स माई वेस्ट साइज, ठीक है. एंड आई वाज लाइक, दिमाग में मेरे चल रहा है कि एक स्ट्रेंजर मुझसे पूछ रहा हूँ, मैं एक स्ट्रेंजर को क्यों बताऊं. आई वाज लाइक आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. देन शी सेड कि तुम्हारी वेस्ट है भी, बिकॉज आई एम अ वेरी स्लिम पर्सन. सो नाउ शी कम्स एंड देन शी सेज इन फ्रंट ऑफ मी दैट तुम्हारे पास वेस्ट है भी. एंड देन आई एम लाइक कि उस टाइम तो आई वाज लाइक कि अभी तो हंस रही हूँ मैं, इट्स वेरी फनी फॉर मी राइट नाउ, बट दैट टाइम आई वाज लाइक कि क्या कह रही है ये औरत. एंड शी सेड तुम्हारी है भी. एंड देन आई वाज लाइक आपको क्या दिक्कत है. देन आई वुड हैव सेड टू हर दैट यू लुक एट योर सेल्फ, कितना ज्यादा मोटी हो या कुछ भी, बट यू नो आई डोंट insult people and I don't want to behave in negative way with people if they are unhealed. It's reflecting their things. इतने unhealed है. So I just said अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनको ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करना था मुझे. मैंने बोला आपको क्या दिक्कत है, मैं वहां से चली गई, ठीक है, क्योंकि मैं एक नहीं आंसर देती तो भी बहुत अजीब हो जाता, ठीक है. वो बात वहीं खत्म हो गई. एंड आई वॉज विद दैट फ्रेंड ओनली. ना आई वॉज रिटर्निंग, ना जब वहां से उसके 15-20 मिनट बाद हमने ऑटो लिया, हम वापस आ रहे हैं. एंड दैट फ्रेंड इज टेलिंग मी आज का दिन काफी अच्छा था यार, पीसफुल था, मजा आया. कॉलेज पहुंचने के बाद चीज आज का दिन बहुत अच्छा था, मैंने एंजॉय किया. उस दिन उसने मुझसे 3 बार ये बात बोली, और उसके पहले हम लोग इतनी बार घूमने गए, उसने मुझे कभी नहीं बोली. सो यू नो हाउ कैन अ पर्सन बी लाइक दैट. मतलब खुद की लाइफ पे फोकस करने की जगह वो मोहल्ले वाली आंटियों की तरह दूसरों को जज करना एंड कंटिन्यूअसली इस तरह बिहेव करना इज समथिंग, ये उनको सिखाया गया है. इतने अनहील्ड लोग होते हैं इस लाइफ में. बट इंस्टेड मैंने उससे ऑब्वियस बात है, मैं वैसे तो नहीं करना चाहती थी, बट दिस इज हाउ थिंग्स हैपेंड. कभी मुझे नहीं बोलना कि खराब चीज, मतलब अच्छी चीजों पे कुछ भी नहीं बोलना. एंड देन इफ समथिंग बैड हैज हैपेंड टू मी, तो उल्टा दिमाग खराब करने के लिए शी वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी कि आज का दिन कितना अच्छा था. कोई इंसान कितना गिर सकता है, ये चीज तभी भी समझ में आती है जब खुद के साथ होती है. सो यू नो अगर आपको इतने ज्यादा, ये तो मेरी लाइफ से बहुत कम एग्जाम्पल्स है जो मेरे साथ उस पर्टिकुलर इंसान ने किया है. दिस इज, और पूरा जेलसी का पैकेज इस बंदी में था. ये वीडियो के लिए मैं उसको इतनी ग्रेटफुल हूँ कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे बिकॉज ऑफ हर. इतनी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं कि उसने मुझे लाइफ एक्सपीरियंस दे दिया कि मेरा एक और कंटेंट के लिए वीडियो निकल गया, ठीक है. बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे इससे, ऑब्वियसली अगर उसने देखा है वीडियो तो वो भी ऑफेंड होगी, ठीक है. कई सारे लोग मेरी बात से कई हद तक ऑफेंड होंगे. बट यू नो अगर हम इस चीज को मेन बात से लेके अगर हम कहीं और लेके चले ना, तो आप समझो इस बात को कि कितना कोई इम्पैक्ट कर सकता है. आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज कैसे खराब करी उसने मेरी. असाइनमेंट में अगर मेरा उससे बेटर वो था, मेरे थीम आइडियाज कहीं ना कहीं उससे जा रहे हैं, ठीक है, वो अगर मेरा बेटर आइडिया भी है, तो उसकी इतनी ज्यादा गंदी आंखें और नजर, दैट द इविल आई शी पासेस, तो मेरे स्कोर खत्म होते गए, गंदा होता गया मेरा. मैंने देखा ना जिस टाइम 7 मंथ से वो मेरी लाइफ में कितना खराब होता गया, ठीक है. जबकि उससे बेटर अगर मेरा पर्टिकुलर चीज में भी वो है. एज सून एज शी वेंट, अब मैं अपने असली पोटेंशियल पे काम कर रही हूँ. जब उसको मेरे लाइफ से हटाया, मैं अपने असली चीज पे काम कर रही हूँ. जहां मैं गलतियां कर रही हूँ, जहां मैं अच्छाइयां कर रही हूँ, तो मुझे उस चीज का जूरी में अप्रिसिएशन मिल रहा है. और जो मैंने गलत करा है उसके लिए मुझे जूरी मेंबर्स ने क्रिटिसाइज भी करा है, ठीक है, विच वॉज अ वेरी फेयर थिंग, ठीक है. आई अंडरस्टैंड, आई न्यू दैट यहाँ गलती है तो वहां वो बोलेंगे ही, दे डिड, ठीक है. सो असाइनमेंट्स में हो गया, लाइफ में हो गया, दूसरे फ्रेंड्स से रिलेशनशिप्स में हो गया कि भाई दूसरा फ्रेंड भी अगर मेरे से अच्छे से बिहेव कर रहा है ना, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड से बैड अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन. खुद की रूममेट की बुराई बाहर वालों से करेगी. सी अनदर पॉइंट कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपसे बाहर वालों की, जितने लोगों में बैठ रहे हैं उसकी बुराई कर सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है ना कि वो आपकी भी करेगी बाहर, ठीक है. सो
सी अब इस चीज से ये चीज समझ में आती है, लास्ट थिंग कि हमें हर बंदे में अब जेलसी नहीं ढूंढनी है कि अगर कोई आपको एक्सेसिव एडवाइस दे रहा है तो वो जेलस है। भाई कई लोग हेल्प भी कर रहे होते हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई, 2-3 पैटर्न्स देखकर विजिबल होती हैं ये चीजें, ठीक है। एक्सेसिव एडवाइस दे रहा है, आपको पता है कि गलत है, एक चीज गलत हो गई 10 बात गलत बोल दी, थर्ड पर्सन हमेशा आग लगाने का काम करता है, तो नहीं लेके आना चाहिए उसको। तो कई सारी चीजों से ऐसा आइडेंटिफाई हो सकता है, करिए। और ऐसे इंसानों को जीवन में रखने से अच्छा है अकेले रह जाओ, अकेले मर जाओ, बट ऐसे इंसानों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि अंदर से आपकी एनर्जी, सोल सब चीजों को खराब करेगी। एंड हो सकता है कि आपको इतना सीवियर हेल्थ इश्यू हो जाए, इतनी ईवल आई पास कर दे वो इंसान कि आप बेड से ना उठ पाओ। सो आई एम गिविंग दिस एडवाइस टू यू बिकॉज आई हैव फेस्ड इट। इफ यू हैव टू टेक दिस इन अ नेगेटिव वे, इट्स अप टू यू, it's up to you in which way you take, but if you want to take it in positive way, so you can take it in that way also. That's it for today's video guys. Like, share and subscribe to my channel. Bye for now.